Yeah, in today's class we are going to discuss with what? In today's class we are going to discuss with you about a well-known essay, that is Sir Roger at Home. एक essay है और उस essay का नाम है Sir Roger at Home. And you will come to know when I talk about this essay. In this essay, what do you find? In this essay, you find that there is a character Sir Roger. इसमें जो है एक एसेइस्ट है जिनका नाम जोसेफ एडिशन है. जोसेफ एडिशन ने एक एसे लिखा है और उस एसे का क्या नाम है? सर रॉजर एट होम. इट मीन्स दैट इन दिस एसे यू विल कम टू नो अबाउट सर रॉजर. इस एसे में आप किसके बारे में जानेंगे? सर रॉजर के बारे में जानेंगे. तो सर रॉजर क्या है, इस एसे में क्या क्या चीजें हैं, जस्ट शेयरिंग विद यू जस्ट शेयरिंग विद यू अ पीडीएफ फाइल. एक पीडीएफ फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूं. बस आपको जो मैं रीड करते चलूंगा, जो बताते चलूंगा, यू हैव टू जस्ट ओनली गिव योर आई. यू हैव टू जस्ट गिव, मींस हैव अ लुक and try to understand what I am explaining. Sharing with you PDF file. I think the PDF file is visible. Is it visible? Yeah. Now you will come to know कि when I talk about this essay, here you find that कि the essay begins what? The essay begins with an epigraph. You find here the essay begins with an epigraph and the title of the essay is Sir Roger at Home. What is the title of the essay? The title of the essay is Sir Roger at Home. Written by whom? Written by Joseph Edison. In the first page you find 2 points. In the first page you find 2 important points. Number 1, कि the essay is Sir Roger at Home. Number 2, कि who is an essayist? Joseph Edison is an essayist. And Joseph Edison belongs to 17th century. Which century? 17th century. Joseph Edison belongs to 17th century. And Joseph Edison has written periodical essay. What type of essay he has written? Periodical essay he has written. And the spelling of periodical is Periodical. Now in this essay he tells about a man Sir Roger. इस essay में उन्होंने किसके बारे में बताया है? सर रॉजर के बारे में बताया है. सर रॉजर एक कैरेक्टर का नाम है जिन्होंने एसेइस्ट को दावत दिया है अपने घर पर और वो उनके घर पर जाते हैं, इसीलिए इसका टाइटल क्या रखा गया? सर रॉजर एट होम. सर रॉजर अपने. तो सर रॉजर क्या है? एक कैरेक्टर का नाम है. सर रॉजर इज द नेम ऑफ अ character. Where is he living? He is living at his home and the essayist got opportunity to meet that man. essayist को एक मौका मिलता है कि वह उनसे मुलाकात करे और कहां पर करे? उनके घर पर करे. इतना कंफर्म हो गया. Now the second point you find what? You find the essay begins with an epigraph. There is a word epigraph. EPIGRAPH. अगर कोई पूछता है एपिग्राफ क्या है, तो एपिग्राफ जो है वह हिस्सा होता है या कहीं पे कोई अंश किसी पार्टिकुलर कविता का, किसी पार्टिकुलर प्रोज का या एसे का कोई हिस्सा उठा के कहीं का कहीं पे ले जाकर के रख दिया जाता है. उसको क्या कहा जाता है? एपिग्राफ कहा जाता है. तो द वर्ड एपिग्राफ रिफर्स दैट सम लाइंस ऑफ अनदर वर्क हैज बीन टेकन and put to another place. कहीं और जगह का उठा के कहीं और जगह पर उसको ले जाकर के रख दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है. So you find what? कि the essay begins with an epigraph from Horace. और ये कहां से लिया गया? होरेस नाम के एक राइटर है, वहां से लिया गया है. क्लासिकल रोमन लिरिक पोएट 65 BC to 8 BC. होरेस वो पोएट है और उनके वर्क से ये लाइनें ली गई है. कौन सी लाइन ली गई है? Here plenty's liberal horn shall pour of fruits for thee
A copious show honors of the quiet plain. It means that these lines have been taken from where? These lines have been taken from the work of Horace. गई है। अब आप ये देखते हैं कि ये होरेस के वर्क से ली गई है। तो होरेस क्या थे? होरेस एक और 4th सेंचुरी बीसी के थे, जहां पे 65 बीसी से लेकर 8 बीसी तक। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिग्राफीन, कह रहे कि जो वर्ड एपिग्राफीन से आया है। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड एपिग्राफीन से, मीनिंग टू, जिसका ये क्वेश्चन बेटा बन सकता है कि ये जो एपिग्राफ है ये कहां से आया है? एपिग्राफ केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, what epigraph came from the Greek word epigraphine, meaning to write. Epigraph is a quotation taken from an existing text. करें जो एपिग्राफ होता है या कोटेशन होता है जो किसी टेक्स्ट से लिया जाता है और किसी दूसरे टेक्स्ट में जोड़ दिया जाता है। यही मैंने आपको अभी बताया था कि जो एपिग्राफ है या क्या है? एपिग्राफ इज अ कोटेशन that has been taken from some text and put together from other place, and उसको दूसरी जगह पे and it is added in another. उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसमें बताया है, क्या बताया है कि from an existing text which sets the tone and context of the narrative that is to follow. In the case of the spectator essay, जो यह essay है सर रॉजर एट होम जो है इस जर्नल था, वहां से इसको लिया गया, बहुत सारे एसे का कलेक्शन था। तो कहते हैं कि स्पेक्टेटर जो एसे है वहां पे अगर आप देखेंगे होरेस सर्व्स अ डुअल पर्पस, उसमें होरेस का यूज होना डुअल पर्पस को इशारा करता है। डुअल का मतलब दोहरा। होरेस का अगर यूज किया गया तो उसकी दोहरी मीनिंग निकलती है, डबल मीनिंग निकलती है। क्या क्या निकलता है? होरेस सर्व एज अ डुअल पर्पस, फर्स्टली एट अ मेटा टेक्सुअल लेवल, एडिशन रजिस्टर्स हिज नियो क्लासिकल इंस्पिरेशन। नियो क्लासिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिस एज से एडिशन बिलोंग करते हैं उस एज को नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। और वह एज कब आया था? 17th सेंचुरी में। और उसका टाइमिंग कब से कब तक था? फ्रॉम 1745, 1700 ईस्वी से लेकर 1745 ईस्वी तक इंग्लिश लिटरेचर में जो पीरियड है उसको नियो क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। और यह कौन सी सेंचुरी रही है? 18th सेंचुरी की शुरुआत। तो नियो क्लासिकल एज के नाम से उसको जाना जाता है और वहां पर होरेस का यूज करना एक बड़ी बात है। क्यों? बाय बारोइंग लाइंस फ्रॉम होरेशियन टेक्स्ट व्हिच पेंट्स द पिक्चर ऑफ एन इडलिक pastoral dream of plenty as a complementary metaphor for Sir Raja's plentiful state in 18th century Worcestershire. और किसके बारे में बताया गया है? सर रॉजर के बारे में। आपको पूरा लाइनें नहीं पढ़नी है, मोटी मोटी बातें आपको इस ऐसे में समझना है जो मैंने आपको क्या किया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू गेट हियर? यू गेट हियर कि 18वीं शताब्दी के एक राइटर है जिनका नाम जोसेफ एडिशन है। जोसेफ एडिशन ने क्या किया हुआ है? जोसेफ एडिशन ने एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलप किया है। वह कैरेक्टर कौन है? सर रॉजर है। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल रहा है कि इस एसे में किसके बारे में बात की जा रही है। इन दिस एसे यू फाइंड दैट कि द एसेइस्ट टॉक्स अबाउट हुम? द एसेइस्ट टॉक्स अबाउट सर रॉजर। जो एसेइस्ट है वो किसके बारे में बात करते हैं? टॉक्स अबाउट सर रॉजर। व्हेन द एसेइस्ट टॉक्स अबाउट to know, here is a character Sir Roger, and Sir Roger is a character which you find that he has basic characteristics. And what the basic character? The first characteristic which you find that he is a simple man. What man? He is a simple man. The first character which you find that he is a simple man. And second point which you find that is highly significant, and that is what he is a man of down to earth. He is a man of down to earth. And the third point which you find that he is living in rural area. Where is he living? He is living in रूरल एरिया। वह रूरल एरिया में रह रहे। सो व्हेन यू कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स या व्हेन यू कम टू नो अबाउट दिस
मैन, यू फाइंड सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स कि इन दिस ऐसे आपको सबसे पहले किसके बारे में बताया जा रहा है? सबसे पहले सर रॉजर के नेचर और कैरेक्टर को लेकर के बात हो रही है। तो जितना भी चीजें आपको बताई गई कि इसमें एपिग्राफ है, एपिग्राफ कहां से लिया गया? होरेस से लिया गया है। होरेस कौन थे? एक पोएट थे जो बीसी से बिलोंग करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि सर रॉजर के जो राइटर हैं एडिशन, जोसेफ एडिशन किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? किस सेंचुरी से? और जोसेफ एडिशन का जो एज है वह कौन सा एज रहा है? नियो क्लासिकल एज। और नियो क्लासिकल जो एज है वह कौन सा एज है? 18। You will come to know what? You will come to know कि Joseph Edison as a character, Joseph Edison as a writer just tells about a particular person, and who is that person? That person is Sir Roger. सर रॉजर से उनको मिलने का मौका कब मिलता है? जब वो उनके जाते हैं। इसीलिए ऐसे का क्या नाम रखा गया? सर रॉजर होम। दिस इज वाई यू फाइंड कि जो ऐसे है उसका नाम रखा गया सर रॉजर एट होम। फिर ये बताया गया कि यह जो ऐसे का यूज किया गया, एपिग्राफ की स्पेलिंग क्या है? EPIGRAPH। एपिग्राफ जो किया गया है उसका क्या मतलब होता है? एपिग्राफ इज अ कोटेशन टेकन फ्रॉम अनदर टेक्स्ट एंड पुट इन अनदर टेक्स्ट। एक ऐसा कोटेशन या कुछ ऐसी लाइनें जो किताब से ली गई है और किसी दूसरी जगह जोड़ दी गई, उसको क्या कहा जाता है? एपिग्राफ कहा जाता है। इसमें जो एपिग्राफ है वो कहां से लिया गया है? इसमें जो एपिग्राफ है वो जो है होरेस नाम के पोएट है जो बीसी से बिलोंग करते हैं, उनके वर्क से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना हुआ कौन सा है कि व्हेन यू कम टू नो अबाउट की न्यू क्लासिकल एज बाय बारोइंग लाइंस फ्रॉम अ होरेशियन as a complementary metaphor of सर रॉजर। किसके बारे में बात हो रही है? सर रॉजर के बारे में बात हो रही है। पीसफुल स्टेट, जिनके पास बहुत ज्यादा संपदा, संपदा मतलब धन है। और सर रॉजर किस सेंचुरी के? 18 सेंचुरी का नाम है। इंग्लैंड के चेस्टरशायर में एक बड़े लैंडलॉर्ड रहते हैं और उस लैंडलॉर्ड का सर रॉजर। इसका मतलब कि जो आप ऐसे, जो आप एसेइस्ट यहाँ आप देख रहे हैं वो ऐसे, वो एसेइस्ट कौन है? दैट इज सर रॉजर। So you will come to know what? You will come to know कि Sir Roger is who? Sir Roger is a landlord and he belongs to 18th century. कहाँ पे रह रहे हैं? इंग्लैंड में रह रहे हैं। इंग्लैंड के किस जगह पर रह रहे हैं? वॉर्सेस्टर शायर है। राइटर अभी उन्हीं के बारे में बताए। अब तो ये माइंड मेकअप हो रहा है कि सर रॉजर कौन है, सर रॉजर एट होम क्यों रखा गया, कहां से लिया गया, उनके बारे में सेइस्ट क्या? फाइंड दिस थिंग। When you come to know about this particular point, secondly, Sir Roger's rural countryside. Sir Roger कहां से बिलोंग करते हैं? रूरल। एक केवल नोट करना है, पूरा आपको ऐसे पे नहीं जाना, जितना मैं मार्क कर रहा हूं, जितना पॉइंट बता रहा हूं, टू गेट इंफॉर्मेशन। सर रॉजर बिलोंग करते हैं रूरल कंट्री साइड। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण एरिया से, रूरल कंट्री साइड से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि existence marked by quiet and an abundance of nature's of the squares benevolent, a very significant point. सर राजा क्या है? ब्लेंड का मतलब होता है हम्बल, जिनरस, काइंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है तो ही टाइप ऑफ मैन, ही इज अ बेनिवोलेंट मैन। तो राइट डाउन दिस पॉइंट कि ये बताता है कि सर रॉजर का क्या है? सर एक बेनिवोलेंट मैन है। गार्डियनशिप एज द लॉर्ड ऑफ द मेनर, जो है लॉर्ड का मतलब कौन से लैंड? लैंड लॉर्ड। उनके पास बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी जमीन है, बड़े काश्तकार है और उनके अंडर में बहुत सारे किसान के खेतों में काम करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट। द एपिग्राफ आल्सो सर्व्स अ narrative purpose in presenting Sir Roger as the emblem of a class of landed gentry। और सर रॉजर एक बड़ी जो है जेंट्री से बिलोंग करते हैं। वह कौन सी जेंट्री है? लैंडेड जेंट्री।
जो सामंतवादी व्यवस्था होती है, जो लैंड लॉर्ड होते हैं, जो फ्यूडल सिस्टम होता है, जिसको आप हिंदी में उर्दू में जमींदार कहते हैं, उस पार्टिकुलर जेंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये जो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? ये जो है लैंडेड जेंट्री से बिलोंग करते हैं। लैंडेड जेंट्री कौन सी जेंट्री होती है? पास का पैसा है, जिस इन्होंने क्या किया, बहुत कुछ लोगों को दिया हुआ। तो ही बिलोंग्स टू व्हाट? ही बिलोंग्स टू लैंडेड जेंट्री। लैंड has already lived past its prime and is now in decline। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और जो सामंतवादी हो रही है, लोगों के पास जो बहुत सारे पैसे थे, जो थी, वो सरकार क्या कर रही है? अपने हिस्से में या अपने कब्जे में ले रही है। सो यू फाइंड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की विच ही टेल्स हियर। नाउ द सेकेंड पैसेज एंड देखेंगे स्पेक्टेटर। इस पैसेज को मुझे बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करना, केवल बताना स्पेक्टेटर जो है एक जर्नल का नाम था। जर्नल क्या होता है? वह होता है में जर्नल कहा जाता है। दर्पण है, क्रॉनिकल है, या इसके अलावा जो है आपका लाइन द हिंदू का है, जो या इंडिया टुडे है, मैगजीन्स निकलती है, उन सारी मैगजीन्स को क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है। और एक कब निकलती है? वीकली निकलती है, मंथली निकलती है। आपका बात कब हुई थी? शुरुआत 18वीं सेंचुरी से ही हुई थी, 18वीं शताब्दी से ही शुरू हुई थी, 18वीं ही ये निकली। जो एसेइस्ट है, एसेइस्ट किसके बारे में बात करता है? एसेइस्ट जो है सर रॉजर के कैरेक्टर को लेकर के बात करते हैं, बताते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है। तो गो विद द नेक्स्ट पैसेज, और जो नेक्स्ट पैसेज है यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको समरी। इन द एसे सर रॉजर एटवुड, डिड यू गेट इट? सबको मिल गया ना? नेक्स्ट इन द एसे, इस एसे होम जो सर रॉजर है एट होम, द फिगर ऑफ द स्पेक्टेटर इज प्रेजेंट एज अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। जो सर रॉजर है उनकी जो पर्सनालिटी है वह कैसी पर्सनालिटी है? डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ही हैज डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर रॉजर की जो पर्सनालिटी है वह कैसी पर्सनालिटी है? अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन यू गो विद सर रॉजर की पर्सनालिटी बहुत ही डिस्टिंक्ट है। व्हाट ही इज? ही इन्फॉर्म्स द रीडर दैट ही हैज बीन इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड। कह रहे हैं कि एसेइस्ट किया है, अपने घर पर दावत के लिए इनवाइट किया है। अब आपको ऐसे के बारे में बात हो रही है। He informs the reader that he has been invited by his friend Sir Roger D. Coverley. उनका पूरा क्या नाम? Sir Roger D. Coverley. To stay for a month with him, कि वो के घर पर आए और एक महीना रुके the latest country house। कहाँ पर रुकेंगे? गांव वाले घर में रुकेंगे। कहाँ वाले? गांव जा रहा है। In this essay you find that he to stay at his home for 1 month and the home is situated in rural area। कहां पे situated है? रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि वहां पता है कि to stay for him at the latest country house where I can form my ensuing speculation। ये मौका मिला कि जो मेरी स्पेकुलेशन थी, स्पेकुलेशन माने आकलन करना, किसी के बारे में अनुमान लगाना, मुझे वहां पे हारने का मौका। दैट द स्पेक्टेटर इज अ रिजर्व मैन। यहाँ पे जो स्पेक्टेटर आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है? सर रॉजर किस तरह के आदमी है? रिजर्व आदमी है, बहुत अपने आप को रिजर्व रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं काम की ही बातें करते हैं। तो उनके नेचर का एक दूसरा आपको पहलू पता चलता है, वह क्या है? रिजर्व्ड मैन। पहला क्वालिटी मैंने क्या बताया था? बेनिवोलेंट मैन। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? उदार किस्म के, हम्बल्ड किस्म के। फिर मैंने आपको बताया था वो क्या है? लैंड लॉर्ड है। लैंड लॉर्ड है या उनके पास बहुत सारा
जमींदार टाइप के हैं, उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो बहुत हैप्पी हैं, दे ऑल आर हैप्पी। और जो सर रॉजर है, सर रॉजर ने अपने दोस्त को इनवाइट किया है, अपने दोस्त का मतलब कौन, जोसेफ एडिसन को, कि वे हमारे घर में आकर के गांव वाले घर में 1 महीना रुके। इस तरह की चीजें आप पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच यू सी एंड व्हाट इज दैट थिंग, इन द नेक्स्ट पॉइंट यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो कि हियर it is clear that spectator is a reserved man, deeply contemplative, averse to being observed by others because that is a rule by which he defines himself। और वो कंटेम्पलेटिव है, बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान से सोचने वाले। एक दूसरी उनकी क्वालिटी है, बेनिवोलेंट है, जनरस है, काइंड हार्टेड है, रिजर्व्ड मैन है, और एक और कौन सी क्वालिटी पता चलती है, contemplative। what type of man he is, contemplative, observe each and everything, who go into a very deep, जो चीजों को बहुत डीप में जाके देखते हैं। contemplative, averse to being observed by others because that is the role by which he defines himself, that is the role by which he defines himself, और उसी के आधार पर अपने आप को डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। The role of the spectator as the observer of behavior is presented here as very serious official business and his need to maintain a certain social distance from Sir Roger's guests at the country house appears necessary to his task। एक और पॉइंट पता चलता है, वह ये पता चलता है कि सर रॉजर रिजर्व किस्म के आदमी है, और थोड़ा सा जो वहां के बिजनेसमैन हैं उनसे उठा के रखी है, नहीं है, बहुत ही रिजर्व टाइप के हैं। फर्दर ही टेल्स, व्हाट डज ही टेल, ही सर रॉजर and does not impose his own or his guest hospitality और क्यूरियोसिटी ऑन द स्पेक्टेटर करते, वो जानते हैं स्पेक्टेटर के इस नेचर को, और उनके यहाँ जो भी कोई मेहमान आता है उसकी हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी वो दूसरे पर नहीं थोपते हैं, बल्कि वो खुद उसका जो है क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। तो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर रॉजर, कि सर रॉजर वेलकम्स हिज गेस्ट ऑन हिज ओन बिहाफ। सर रॉजर डज नॉट force anyone, Sir Roger does not impose anything to other person that my guest will come, you have to be ready to welcome that person, no, not at all। But Sir Roger is a type of man who is always ready, for whom who is always ready for his guest, जो अपने गेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो टाइप ऑफ थिंग्स यू फाइंड, इस तरह की चीज आप क्या करते हैं, वहां पे आप देखते। Another important point which you will come to know is significant उनका अपना चीज है, you are getting here। It therefore seems that spectator and Sir Roger share quite a harmonious and flexible relationship। यहाँ रॉजर और स्पेक्टेटर के बीच कैसा रिलेशनशिप है, हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब कि इन अ वेरी स्वीट एटमॉस्फियर you find that is healthy relationship, that is what type of relationship, harmonious relationship। He is a good man and he has what, he has the harmonious relationship where Sir Roger's exhibition is contrasted with and balanced by the spectator's introvert। quite obvious that the spectator is a city तरह के कैरेक्टर है। स्पेक्टेटर जो है वह सिटी मैन है, और जो सर रॉजर के हैं गांव के हैं। तो गांव और शहर के दो आदमियों के बीच में क्या किसी तरह का मतभेद तो नहीं है, क्या किसी तरह का मनभेद तो नहीं है, क्या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, कल्चर को लेकर, सुपीरियरिटी को लेकर, इंफीरियरिटी को लेकर के, यू एंड आई का कॉन्सेप्ट, तो ये पता चलता है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बल्कि दोनों। So in this essay, you come about a man who is living in rural area and in city who is living a good bonding, they have a healthy relationship, they have one harmonious atmosphere। And another point which you go, that is what, a lot of curiosity about him among Sir Roger's gentleman friends from the country। और उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि जो सर रॉजर के जो दोस्त
उनके बारे में जाना जाए या उनसे मिला जाए। सो एक अच्छी एटमॉस्फेयर में देखिए, आपको यहाँ पे समझना है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फेरी टेल। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेरी टेल बताई जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि यू आर गोइंग टू गेट एनी टाइप ऑफ थिंग जो कि जो है बहुत ज्यादा उस तरह की चीजें हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रिंस, प्रिंसेस, लैंड लॉर्ड्स, लैंड लेडीज। नो, नॉट एट ऑल। एक कैरेक्टर है जिसको जो आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में आपको जानना। अगर आप उसके पॉइंट भी समझ लेंगे तो यू विल बी एबल टू एलाबोरेट। मैंने अभी तक जितना भी बताया यही बताया कि सर रॉजर एक ऐसे कैरेक्टर है जो गांव में रह रहे हैं। इन्होंने अपने दोस्त को इनवाइट किया है अपने घर पर कि आप आइए और यहाँ 1 महीना रुकिए। जो उनके दोस्त है वो कोई दूसरा नहीं है बल्कि जो एसेइस्ट है जिनका नाम जोसेफ एडिसन है, वही उनके दोस्त है। और जोसेफ एडिसन ने उनके बारे में पहले कुछ या नहीं करेंगे। जोसेफ एडिसन कहते हैं नाउ आई गॉट टाइम, मुझे अब मौका मिला है कि समझ सकता हूं। जब जोसेफ एडिसन उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि सर रॉजर लैंडलॉर्ड है, उनके पास बहुत संपत्ति है, बड़े घराने से बिलोंग करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि सर रॉजर बेनिवोलेंट नेचर है। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? उदार, हम्बल्ड, काइंड हार्ट, जिनरस। फिर उन्होंने बताया कि सर रॉजर हॉस्पिटैलिटी में मतलब होता है कि टू वेलकम द गेस्ट, गेस्ट को वेलकम, hospitality. And what do you mean by hospitality? Hospitality to believe or to welcome guest, गेस्ट का वेलकम करना। इसलिए उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटैलिटी पास करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जो सर रॉजर वेलकम करने के लिए किसी दूसरे को के नौकर हो या तुम हो तो फला आदमी आएगा, आप उसका वेलकम करें, उसका वेलकम खुद करते हैं, उसका वेलकम खुद करते हैं। तो काइंड हार्टेड, जिनरस, बेनिवोलेंट, डाउन टू अर्थ, विद ओपन हार्ट एंड ओपन माइंडेड, अ वेरी रिच पीपल। इतना आपको सर रॉजर के बारे में जानकारी हुई। एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम द स्पेक्टेटर है। द स्पेक्टेटर कहां पे रहते हैं? शहर में रहते हैं। लेकिन द स्पेक्टेटर से जो वो भी काफी बड़े आदमी, लेकिन स्पेक्टेटर का या स्पेक्टेटर का सर रॉजर से रिलेशन बहुत अच्छा है। कभी कभार ये होता है कि जो आदमी शहर में रहता है अपने आप को बड़ा समझता है, अपने अंदर सुता सोटी लाता है। देयर इज अ केमिस्ट्री बिटवीन सर रॉजर और जो स्पेक्टेटर वहां पे रह रहे हैं। तो ये भी राजा मतलब एक ऐसे आदमी जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बड़े पद पर है, बड़े आदमी है, उसके बावजूद भी उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। नाउ सी द in the next page what does he tells? In the next page he tells what? He tells a spectacle for the country folk and vice versa for long tradition in the development of human civilization। और उनका कहना जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसमें गांव वालों का बहुत अहम रहा है। और गांव वालों की उस रोल को हमें समझना चाहिए कि चूंकि महात्मा गांधी ने भी एक भारत कहाँ निवास करता है? भारत गांव में निवास करता है। कल्चर होती है, उसकी अपनी इकोनॉमी होती है, उसका अपना स्ट्रक्चर होता है। गांव वाले ही क्या है कि इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वहां का जो अपना कल्चर है, जो चीज है, उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर भी उन्होंने बात किया हुआ है। और कहते हैं कि गांव कल्चर होता है। फॉक कल्चर का मतलब ट्रेडिशनल कल्चर, जो वहां की मिट्टी में से जन्म लिया हुआ है। अगर अभी आप कानपुर शहर को छोड़ करके 12-14 किलोमीटर चकेरी स्टेशन या चंदारी को क्रॉस करिए या इधर जाइएगा तो यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट, यू विल कम टू नो अबाउट कि एक रूरल सिस्टम शुरू होगा जहां आपको ओपन स्काई नजर आएगा, ओपन फील्ड नजर आएगा। या आप गंगा बैराज पे आप जाके देख लीजिएगा तो वहां पे जो फिशिंग है, फिशिंग के अलावा जो खेत खलिहान है, तमाम चीजें यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट कि ओपन फील्ड एंड इन अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर द पीपल आर लिविंग देयर लाइफ। और हम लोग करते हैं क्या? हम लोग ये सोचते हैं कि दैट पार्टिकुलर प्लेस इज फॉरवर्ड कि पिकनिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे उनके अपना कल्चर है, उनका अपना ट्रेडिशन है, रहने का तरीका है, तमाम चीजें। तो उन्होंने कहा कि जो गांव के लोग हैं उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है एंड वाइस वर्सा फॉलोइंग इन अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व बाइनरीज ऑफ द रूरल एंड द अर्बन। जैसे जैसे
विकास हुआ, आदमी दो हिस्सों में बढ़ गया। शहर, रूरल का मतलब गांव में रहने वाला आदमी, और अर्बन का मतलब में रहने वाला। तो जो शहर का रहने वाला आदमी वो सोचता है कि गांव वालों पहले अनपढ़ है या इस तरह से एक अपने में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, गांव वालों को इंफीरियर समझता है। वही चीज उन्होंने कहा कि एक कैसे चीजें डेवलप हो रही है। द कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिवाइड बिटवीन द एंड द कंट्री कैरेक्टराइजिंग द ट्रांसफॉर्मिंग socio-economic landscape of the 18th century England is played out in this to the curious gentleman। उन्होंने कहा 18वीं शताब्दी इतनी भी चीजें हुई है उसमें इस तो पूरे ऐसे में केवल इतना ही पढ़ना, आगे कुछ नहीं करना। अगर आप आगे कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ और जो लाइनें कर लेंगे तो बुखार आ जाएगा, बीमार हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। You have to go with those lines. You have to try to understand. But these are the significant points which you have to take. These are the important so which you have to take. About and you come to know about a character. Who is that character? That character is Sir Raja. Sir Raja is a benevolent man. Sir Raja is a very means open market man, a very kind living in where ने किसको इनवाइट किया है? जोसेफ, जो राइटर है वो जोसेफ एडिशन है, उन्होंने जोसेफ एडिशन को इनवाइट किया। तो जो जोसेफ एडिशन फ्रेंड है, जोसेफ एडिशन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ हुम? जोसेफ एडिशन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ रॉजर ने। जब उनको इनवाइट किया तो अपने शहर के घर में इनवाइट किया कि गांव के घर में? गांव के घर में इनवाइट किया है। एक महीने के अलावा डू यू फाइंड एनी अदर पर्सन? उनके अंदर शहर का पूरा क्वालिटी है, और जो आपके सर उनके अंदर कौन सी क्वालिटी? व्हाट डू यू कम area? There are two characters. One is what? Raja, and second is who? Second is spectator. और बीच में कौन आके टपक पड़ता? जोसेफ एडिशन, राइटर। आप कुछ नहीं करना, जितना बातें बताई गई है, बट यू हैव एंड व्हाट आर दीज पॉइंट यू नो अबाउट व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैन। वो आदमी क्या है? जेनरस, kind hearted, down to earth, open minded and believes in hospitality। बताया जितनी बातें हजम नहीं हो रहा है, ये तो सब आपके अंदर भी पाया जाता है ना, हमारे अंदर भी पाया जाता है। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना, आपको टेक्स्ट के वर्ड पे नहीं जाना है, आपको सिंपली टोल्ड, तब आपको अपनी own language, you have to develop your own these parts, but you have to write your own language। इवन मैंने आपको ऐसे भेजा है इसी से रिलेटेड, तो कल जब आप आइएगा यानी इसका समरी अबाउट द एसेइस्ट, मैं अबाउट द एसेइस्ट भी आपको भेज दूंगा। तो नाउ जस्ट बाइंडिंग एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू ऑल हैव टू दिस पार्टिकुलर पॉइंट। आप सबको जो है इसकी आदत डालनी है कि कम से कम कुछ नहीं तो एक दो